جائے تم کہہ دو تم تسبیحاں پڑھو تاکہ ابراہیم کی کہانی چھپے. تسبیحاں چھوڑو یہاں دوڑو, نمازیں چھوڑو یہاں دوڑو. اگر 2-4 سال کوئی نہ دوڑا تو نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہاجرہ کون تھی. اس لیے خدا کے نظر محرم کا چاند تو ہو جائے تو اب عبادت کے زور میں حسین نہ چھوڑنا. اب حسین کی محبت میں گھروں سے نکلو تاکہ دنیا کو پتہ چلے حسین کون تھا, یزید کا. جیسے خدا عبادت میں اگر آج کہیں گے میرے مالک ہم عبادت کریں گے, خدا کہا مجھے عبادت نہیں, مجھے عشق مکمل چاہیے. خدا واقعات کو زندہ رکھتا ہے, خدا واقعات کو زندہ رکھتا ہے تاکہ عشق کی کہانی چھپنے نہ پائے. پورے کا پورا مزے بھی چاہیے کہ حسین کی مظلومیت کو محسوس کریں. ایام اعظام میں اگر آپ کہیں گے ہم گھروں میں بیٹھ کے بھی حسین کو سن لیں گے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. حسین ابن علی کے گھر کی طرف آؤ. مجھے با خدا میں پاک بارگاہ میں ہوں, مجلس حسین میں بیٹھنے کی فضیلت اگر سن لوں نا. چھٹے امام کے پاس ایک بندہ ہے, اسے کہا مولا اتنا بیمار ہوں کہ ہر حکیم سے دوا لے لیے شفا نہیں ہو رہی. فرمایا ہمارے ذکر میں بیٹھا کرو اور ذکر میں بیٹھ کے تیز سانس لیا کرو. اسے کہا مولا کیا ہوگا؟ فرمایا ذکرنا شفا, ہمارا ذکر شفا. ہر بیماری کا علاج حسین کی مجلس میں ہے. تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, تمہاری حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں. عزائے حسین میں بیٹھنے کی فضیلتیں کتنی بڑی ہیں. میرے 8ویں شہنشاہ جتنے میرے آئمہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ امیری تقریباً میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا پہ تھی. میرے مولا موسیٰ رضا امیر مولا ہونے اور عزاداری حسین برپا کرتے تھے. ناصر بھائی جب عزاداری حسین برپا کرتے تھے تو میرے مولا خود قالین بچھاتے تھے. اور کتاب میں لکھا ہے کہ دن مولا قالین بچھانے لگے تو ایک نوکر نے آگے بڑھ کے قالین پہ ہاتھ رکھے, کہا مولا یہ نوکری ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ مولا فرمایا یہ اجر میں رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پر میری جد کے عزاداروں نے آ کے بیٹھنا, یہ قالین میں بچھاؤں گا. اس نے کہا مولا ان کی فضیلت کیا ہے؟ امام نے قالین پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرنے مجلس شبیر میں تم بیٹھتے ہو تو عرش سے ملائکہ خدا سے کہتے ہیں میرے مالک ہماری پوری زندگی کی عبادت لے, ایک بار اس محفل میں جانے کی اجازت ہے جہاں حسین کے عزادار بیٹھے ہیں. بڑے خوش نصیب ہو, بڑے خوش نصیب ہو تمہیں تمہاری زندگی میں وہ دن ملے جس میں تم حسین کی ماں کو راضی کر سکتے, حسین ابن علی کو راضی کر سکتے. جب مجلس ہوتی ہے تو مجلس سے ایک دن پہلے تم کیا سمجھتے ہو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں جاب سے نکلا تھا تو میں نے کہا گھر جانے کے بجائے مجلس میں چلا جاؤں, تم اچانک نہیں گئے. جو لوگ مجلس شبیر میں آتے محمود گیلانی صاحب ان کی فہرست علی کی بیٹی زینب اور حسین کا بیٹا سجاد بناتے ہیں. یہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ مجلس شبیر میں آنے والے کے گھر ایک رات قبل جا کے علی کی بیٹی کہتی ہے کل والی فہرست میں تیرا نام ہے. تو حسین کو رونا ہے. ہمارے مذہب شیعہ کے بہت جید عالم دین علامہ محمد امینی, انہوں نے الغدیر لکھی ہے, 20 جلدوں میں لکھی الغدیر, صرف ایک حدیث پہ 20 جلدیں لکھی. علامہ محمد امینی دنیا سے چلے گئے, ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کو مکاشفے میں باپ کی زیارت ہوئی. اس نے خواب میں باپ سے کہا بابا مرنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ اجر کس چیز کا ملا؟ بابا وہ جو آپ نے کتاب لکھی تھی الغدیر اس کا.
फरमाया उसका भी मिला है, लेकिन उससे बढ़ के मिला। बाबा किस चीज का? फरमाया वो जो मैं ज़ियारत हुसैन के लिए जाया करता था, उसका अजर मेरी हर मेहनत से ज्यादा मिला। बेटा ख्वाब में कहता है कि बाबा अगर ज़ियारत हुसैन पे जाने का इतना अजर है तो बाबा करबला में, इराक में जंग छिड़ी हुई है, मैं करबला नहीं जा सकता। अमीन ने ख्वाब में कहा तेरे शहर में कहीं मदरसे हुसैन है? जितने जायर बैठे हैं या जो ज़ियारत से वाकिफ़ हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि मौला हुसैन की हरम में हर जगह पे दुआ कबूलियत होती है, लेकिन जो कुबाए हुसैन है ना, गुंबद हुसैन के नीचे, कहते जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। मासूम फरमाते मदरसे हुसैन की हैसियत कुबाए हुसैन की, जैसे हुसैन के गुंबद के नीचे मांगी दुआएं कबूल होती हैं, वैसे मदरसे हुसैन में मांगी। इससे बढ़ के एजाज क्या होगा कि हुसैन तुमसे चंद आंसुओं के बदले तुम्हें सब कुछ दे रहा है। जो हुसैन को रोए, रुलाए, रोने वाली शक्ल बनाए, उस पर जन्नत वाजिब। एक आंसू के इवज मिलता है घर फिरदौस का। किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर दिया। मैं बड़ी जल्दी से लफ्ज कहने लगा हूं। हर नबी ने जन्नत खरीदी सस्ती, बेची महंगी। खुदा ने नबियों को जन्नत का मालिक बनाया। नबियों ने कहा ठीक है हम जन्नत लेके देंगे। अपनी उम्मत से कहा इतने महीने की नमाजें, इतने साल की 50 नमाजें, 6 माह के रोजे, ये करोगे फिर दूंगा, ये करो फिर लेकर दूंगा। हर नबी ने खरीदी सस्ती, बेची। हुसैन ने खरीदी महंगी, जिसने नहीं हाय कहा वो मुझसे पूछे कि आपने कहा महंगी खरीदी, क्या महंगी खरीदी? अकबर का लहू दे के हुसैन ने खरीदी। जवान भाई के बाजू दिए, 6 माह का बेटा दिया, जिसकी नहीं हाय निकली वो चांद रात रोने नहीं आया, बहन का बुरका दिया, बेटी के तुम दिए। बेची कितनी? फरमाया एक मच्छर का पर भीग जाए तेरी आंख में आंसू आए, मैं मोहम्मद का बेटा तेरी जन्नत कर। अभी मजलिस तमाम होगी, मातमदारी होगी, मुहर्रम का चांद आसमान पे ना भी नजर आए, इस नीयत से वो आसमान की तरफ और ये सोच के करना कि तुम आबाद शहर में चांद देखोगे। अली की बेटियों ने जंगलों में ये चांद, महंगी खरीद के हुसैन अकबर का जिगर दिया था, कासम के टुकड़े दिए थे, असगर की बात, सैयदों से माफी मांग के, ज़ैनब जैसी बहन का बुरका दे के। आज इतना रो लेना कि पहले पुरसे में हुसैन की मां तुम पे राजी हो, जो ऊंची आवाज में रो रहे हो अली की बेटियां तुम्हें किसी गम में न रुलाएं। बिल्कुल करबला के करीब पहुंच गया था ये काफिला। 2 मुहर्रम को उतरा है मोहम्मद का बेटा करबला के जंगल में। यकम मुहर्रम का चांद तलू हुआ, अली की बेटी गाजरी और नैनवा के रीढ़ के टीलों के दरमियान थी। बीबी रो के कहती अम्मा फिजा जरा गाजी को मेरे महमल के करीब बुला। अब्बास का घोड़ा चलता चलता आलिया के महमल के करीब आया। बीबी रो के कहती अब्बास मेरा हुसैन कहाँ है? फरमाया बीबी मीरे कारवां की हैसियत से काफिले के आगे है। ज़ैनब रो के कहती एक बार जाके हुसैन से पूछ ये कौन सा चांद तलू हुआ है? तब से मुहर्रम का चांद तलू है, मेरे सर से चादर बार बार उतर रही है। अब्बास दुआ कर तेरी बहन की चादर बच। अब्बास हुसैन से पूछिए कहीं मंजिल करीब तो नहीं आ गई। मैं हर साल मुहर्रम के चांद में एक मजमून पढ़ा करता हूं, इस साल फिर पढ़ो। एक मोमन मौला से मोहब्बत करने वाला हर साल अपने घर में मौला हुसैन की मजलिस करता, हर साल मुहर्रम का चांद तलू होता, उसके घर में मजलिस शब्बीर, नोहा खान आ जाते, मातमी आ जाते, रज़ादार आ जाते।
एक साल ऐसा हुआ कि वो इतना मकरूज हो गया कि उसके घर के बर्तन भी बिक गए, खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं था। और मुहर्रम का चांद छत पे गया, मुहर्रम के चांद को देख के रो के कहने लगा, काश मेरी जिंदगी में तलू ना हो, तू हर साल तलू होता मेरे घर में हुसैन की मजलिस, गरीब के लोहे, मेरे घर में कुछ भी नहीं सिवाय अंधेरे। अब ये बात कर रहा था या इसके कांधे में इसकी जौजा का हाथ आया, देखे कहते झूठ ना बोल, मुश्किल हो तो कीमती चीज। पलट के पीछे देखा, बीवी से देखी, कहने लगा जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते हैं, तूने को जेवर बचा के तूने रखा हुआ। कहने लगी नहीं जेवर नहीं है, कुछ और कीमती। कहने लगा कौन सी चीज है? कहती छत से नीचे आ, कमरे के अंदर लेके गई, वहां लेके गई जहां 2 बेटे सोए हुए। मुहर्रम की चांद रात का मजमूर पढ़ने लगा हूं, पूरी रात रोने के लिए। सिर्फ 2 बेटे थे, मदीने वाले सैयदों से मांगे हुए थे। जहां बेटे सो रहे थे दरमियान में जाके मां खड़ी। शौहर देख के कहने लगा मैं समझा नहीं। अगला जुमला कहूं तुम्हारे रोने के लिए, रो के कहने लगी मेरे घर में इनसे कीमती कुछ नहीं। तो क्या मतलब मैं समझा नहीं। रो के कहती बर्दा फरोशों के बाजार जा, जहां गुलाम मिलते हैं वहां गुलाम बना के बेच, जो कीमत मिलेगी हुसैन की मजलिस करवाई। देखो अज़ादारी फैली कैसे है। खुश नसीब हो अपने शहर के बारगाह में आके बैठ गए हो, हुसैन का जिक्र कैसे फैला। देखिए कहने लगा बेटे बेचूं, कभी किसी ने बेटे भी बेचे? शौहर की आंखों में आंखें डाल दी, सच बता लिए किससे थे? कहता मदीने वाले हुसैन। कभी चांद किसका है? मदीने वाले हुसैन। कभी जिससे लिए थे उसे दे दे। और वैसे भी बताइए अकबर से प्यारे तो नहीं, ये कासिम से प्यारे तो नहीं। मां ने इतना मजबूर किया, बेटों को उठाया। अल्लाह जाने कैसी मां थी, कैसा बाप था। में बैठा मुंह बकिया की तरफ करके कहने लगा मोहम्मद की बेटी मेरा नसीब। बीबी मैं तो घर से बेटे भी लेके आया। अभी इसने नबी की बेटी को बुलाया था, ये घोड़ा सवार करीब आता। घोड़ा सवार की आवाज आई, गुलाम बेचेगा? उसे सर उठाया, क्या लगा बेचेगा? क्या कीमत? बच्चे मेरे साथ घोड़े में बिठा दे। अब जो सैयद बैठे मुझे जुमला माफ कर देना, जो गाजी के बाद भी बैठे हो, बच्चों को यूं हाथ पकड़ के उठाया, घोड़ा सवार के सामने खड़ा होकर लगा मैं कर्ज नहीं मांग रहा था, बेटे बेच रहा था। इतनी भी अमीरी क्या है तो मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़ा सवार की बात है, मेरी मजबूरी है। मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल अपने हाथों पे उठाता, मेरे बाजू कोई नहीं। जब कहा मेरे बाजू कोई नहीं है, फिर भी जहन में डालो। बच्चे उठाए, दिनार हाथ में पकड़े घर की तरफ चला गया। जब दरवाजे पे गया, बीवी दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। खाली याद बाप को आते हुए देखा, रो कर बिक गए, ये कीमत मिली है। क्या नहीं, अब रोना ना, अब 10 बातें सिर्फ हुसैन को रोना है। मेरे घर में मेरे बच्चों के रोने की सदा नहीं आनी चाहिए। मैं मोहम्मद की बेटी के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। ये रातें अकबर को रोने की हैं, ये रातें असगर को रोने की हैं। अल्लाह जाने शियो कैसा बाप था, कैसी मां थी। मां घर आ गई, न्याज
بننی شروع ہو گئی. شہر کی جامع مسجد میں اعلان ہو گیا میرے گھر میں غریب کی مجلس ہے. مومنین آ گئے, سب بچ گئی. حسین کا نوحہ پڑھا گیا, حسین کا ماتم ہو گیا. جب سب مومنین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے,